the chat section. Okay, so great. So let's start with today's session. So basically, we were getting multiple requests from different students with respect to examination guidelines. So as you know, always near to exam, we do keep a session basically to guide you that what are the prerequisites for the exam, and at the same time, because your mocks for different subjects, mocks are beginning from tomorrow onwards. So very less time is left for the exam. आपकी एग्जाम ऑलरेडी 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं. So we have to make sure that we are ready for the upcoming attempt. So we will be taking you through this examination checklist. Plus at the same time, we are open to guide you basically wherever you are struggling in. तो कुछ भी आपको एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ें पूछनी है, that how we need to plan for upcoming say 15 days, what should be the priority, how to make sure that we are reaching to the examination standard solutions. So all those answers will be discussed basically after going through this examination checklist. So don't put any question in the chat section as of now. Once I complete the discussion of this checklist, then we are here to discuss all your doubts. So I hope my screen is visible to everyone. So just a quick check, guys, before I start with the discussion. Is my screen visible to all? So this examination, this document is basically preparing you for examination checklist. So always remember, first priority thing that you have to do is that always remember that your email address is well updated. The updated email address is you are using that updated email address in your IFOE portal. तो ये बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है. So let's just quickly go through this section. Now, 2 weeks before your exam, what you are supposed to do? See, check you are receiving IFOA mails. आपको mail आती है memberservices@actuaries.org.uk से. So अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, देखो तो आपको चेक करना है that whether your exam platform account is verified and created or not, and just go through the instructions. और अगर CS1B या CS2B के लिए अपेयर कर रहे हो तो डेटा सेट्स एग्जाम प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके रखो. सो यू कैन डाउनलोड द डेटा सेट्स फ्रॉम द एग्जाम प्लेटफॉर्म. Check the exam date, check the time, check the location of each exam being taken. And there are two ways of sitting for exam. Therefore the requirements would differ. अगर आप in person बैठोगे तो उसके अलग requirements, अगर remotely बैठोगे तो उसके अलग requirements है. तो we will discuss the requirements for each and every section. ठीक है, आपको ARN अपना पता होना चाहिए, अपना पासवर्ड पता होना चाहिए, and you should have valid photo ID ready for your exam. This is very important. So if you are sitting for an in person at a test center, remember to pack your valid photo ID proof. और अगर आप रिमोटली एग्जाम दे रहे हो तो अपनी डिवाइस चेक करो, उसमें कोई अपडेट्स हैं तो वो चेक करो. गार्डियन ब्राउजर आपका अपडेटेड होना चाहिए. ठीक है, फाइनल उसमें जो अपलोड डाउनलोड टेस्ट है आपका वो कंप्लीट होना चाहिए. तो अगर आप इन पर्सन एग्जाम मतलब सेंटर पे जाके एग्जाम दे रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट यू शुड अराइव एट द सेंटर 1 hour अर्ली. अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो सेंटर पे जाके, वैलिड फोटो आईडी शो करो, गेट असाइन टू योर डेस्क एंड स्टोर अवे एनी पर्सनल और नॉन परमिटेड आइटम्स. वी विल डिस्कस कि कौन सी नॉन परमिटेड आइटम्स होंगी. एंटर द रूम अंडर फुल एग्जाम कंडीशंस. आप ईमेल एक्सेस नहीं कर सकते हो, मैसेजिंग एप्स एक्सेस नहीं कर सकते हो. अपने आप को ऑर्गेनाइज रखो. और जिस डेस्क पे आपको जो डेस्क अलॉट होगा, check the equipment is functioning properly. You have to log on to the exam platform to check everything is working. You are not supposed to write any notes before the start time. And कोई भी आप जैसे वर्ड एक्सेल नहीं खोल सकते हो unless and until इन्विजिलेटर आपको नहीं बोलता. सो इन्विजिलेटर को सुनना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप रिमोटली देख रहे हो तो देखो, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर वैलिड ID is with you, computer is on, you are logged on to exam platform, your internet is working, and your application is working, and any desk वगैरह WhatsApp वगैरह you're supposed to close it. So this is very important. Plus at the same time, you are using Proctor U-Test system, so its functionality has to be proper. Because आपका एग्जाम प्रॉक्टर हो रहा होगा तो अपलोड डाउनलोड स्पीड चेक करो, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए. बिकॉज अगर हम सेंटर पे जाके दे रहे हैं तो कुछ भी इशू आएगा तो सेंटर बियर करेगा, यहाँ पर कुछ भी इशू आएगा तो आपका इशू है. सो गार्डियन ब्राउजर चेक करो. एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म आधे घंटे पहले ही आप ऑन कर सकते हो ताकि आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाए. एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड और ऑन बोर्डिंग स्टेप,
स्टेप्स, आप एग्जाम कंडीशंस में हो, अगेन सब सेम थिंग, डू नॉट राइट एनी नोट्स, डू नॉट ओपन एनी अदर प्रोग्राम्स, आपका वेब कैमरा ऑन रहेगा, ऑडियो स्क्रीन शेयर्ड सब कुछ ऑन रहेगा, यू आर विजिबल एज वेल एज यू आर ऑडिबल, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर, योर फोन इज अवे फ्रॉम योर डेस्क, एंड ऑटो सेव फीचर को आप डिसेबल कर सकते हो ताकि एक्सीडेंटल सेविंग ना हो। अब एग्जाम की स्टार्ट डे पर हमें क्या ध्यान रखना है, दैट वी आर सेविंग आर डॉक्यूमेंट्स टू द डेस्कटॉप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपकी फाइल नेम में आपका ARN होना चाहिए। जैसे फॉर CM1B, CM2B एंड CM2 पेपर 1 एंड CM2 पेपर 2, दे हैव टू डाउनलोड मल्टीपल फाइल्स, सो इंक्लूड अ PDF एग्जामिनेशन paper. You have downloaded all the PDF paper, Excel workbook, answer template. Please be careful and make sure you have downloaded all the required files before starting your exam, and use desktop versions of Word or Excel only. So if you're sitting for an exam in person, तो कोई break चाहिए तो you can just check with your invigilator, कोई भी problems हो रही हैं तो invigilator के साथ check करो, कोई issue होता है तो incident form वो आपसे वहाँ पे fill करवाएंगे। Similarly अगर आप remotely exam दे रहे हो तो if you want a break, you have to speak in your web camera before leaving the room. Ensure that your camera, screen and audio remain on for the duration of your exam. This is very important. ठीक है, और जब हम एग्जाम एंड करने लगे हैं तो अपना प्रीव्यू पहले चेक करो, गलत डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं करना, बिकॉज एक बार अपलोड हो गया तो नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड। So upload your work within the 30-minute upload window after the exam ends. If you are sitting an exam remotely, you need to end your proctoring session. So this is important for both, for especially those students who are sitting for the exams remotely. Now, very common question related to the use of formulae and tables. For this, already the notification was out last week as well. So all April 2026 exam papers have been written using the newly released formulae and tables 2025 edition. So all candidates sitting exams in April 2026, they will have access to the soft copy of formulae and table on your platform. तो अगर आपको कुछ भी नया बुक लेने की नीड नहीं है, आपके पास वहां पर रेड बुक अवेलेबल रहेगी, उसको रेफर कर सकते हो आप। For CM1 and CS1 exams, you can bring a minimal annotated but clean copy of 2025 edition into the exam room. For CM2 and SP6, relevant extracts from Formula 2025 edition will be included within the exam paper. You may not bring any book into the exam room. For all other exams, you will not be permitted to bring any book into the exam room. So please note that the only version on formula and tables permitted in the exam room for CS1 and CS1, CM1 and CS1 is formula and table 2025 edition. No other edition, no other version will be accepted. आपके पास नहीं है, do not worry, simply keep on practicing और वहां पर जाकर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रेफर कर लेना, कुछ भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। कुछ इशू होता है एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म में, कोई डाउनलोडिंग अपलोडिंग में दिक्कत आती है, या तो आप exam@actuaries पे मेल कर सकते हो या फिर आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। गार्डियन ब्राउजर में कुछ भी इशू आता है तो ये ऑटोमेटिक चैट है जहां पर आप मतलब चैट AI के थ्रू अपना इशू रेज कर सकते हो। सो आइटम्स परमिटेड इन द एग्जामिनेशन रूम इज योर ID प्रूफ, वन शीट ऑफ पेपर विच हैज योर यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर द एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप नहीं याद रख सकते तो आप लिख के लेके जा सकते हो। रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस फॉर सपोर्ट पर्पसेज। Candidates sitting remotely are permitted maximum of 2 sheets. Pencil, pen, ruler, eraser is allowed. Calculator of any make or model is allowed except mobile. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर नॉट परमिटेड। अगर CP3 का एग्जाम दे रहे हो तो प्री एग्जामिनेशन जो मटेरियल आता है वो आप लेके जा सकते हो। बेवरेजेस आर परमिटेड, हाउएवर इन पर्सन कैंडिडेट्स में bring only a cold beverage in a sealable bottle. I would advise you do not indulge in all this, don't carry any beverage. स्मॉल सैक्स आर ऑल्सो परमिटेड, एग्जाम के टाइम पर इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पेयर ऑफ ईयर प्लग्स और ईयर डिफेंडर्स विच विल बी चेक्ड, दिस इज नॉन इलेक्ट्रॉनिक ईयर प्लग्स आर अलाउड। माउथ कवरिंग इज परमिटेड, रिलीजियस हेडवेयर इज परमिटेड, हैंड सैनिटाइजर और एंटीबैक्टीरियल वाइप्स आर परमिटेड, कार्डिगन टू बी वॉर्न इज परमिटेड, कंफर्ट एड इज ऑल्सो परमिटेड। कोई मेडिकल इक्विपमेंट है, स्पेशलिस्ट मेडिकल रिक्वायरमेंट है, वो भी अलाउड है। कोई वॉचेस नहीं अलाउड है, स्मार्ट वॉचेस नहीं अलाउड है, मोबाइल फोन्स नहीं अलाउड है, टैबलेट्स नहीं अलाउड है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं अलाउड है। स्टडी टेक्स्ट, रिविजन कार्ड्स, कोर्स नोट्स, टेक्स्ट बुक्स, पास पेपर्स, कोई हेडफोन्स, बेसिकली ये सब चीज़ें नहीं अलाउड है। कोई नोटबुक, लैंग्वेज डिक्शनरी, नो कंप्यूटर डिवाइसेस, नथिंग इज अलाउड। नो सिगरेट, नो वेप्स, नो अल्कोहल। सो दिस इज ऑब्वियस, यू आर गिविंग एन एग्जाम, सो दिस इज नॉट अलाउड।
So this is your examination guideline for upcoming 2026 exams. Now your questions and our answers with respect to preparation of 2026 exams. Students, start putting your questions in the chat section, or you can unmute yourself and ask your question. सो देर आर फ्यू क्वेश्चंस जो भी हम लोगों से बच्चे पूछ रहे हैं मैसेजेस पे कि लास्ट डे टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होनी चाहिए। फिर आप लोग कंफ्यूज होते हो कि जब हम क्वेश्चन अटेंड करेंगे उसके अंदर अगर हमारा फाइनल आंसर सही नहीं आया तो कितने मार्क्स कटेंगे। अभी मैं एक सेशन कर रहा था, उसमें एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ बेटा, जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है एक्चुअल एग्जाम्स में। जो हमारे फर्स्ट 2 आवर्स होते हैं ना, दैट आर रियली इंपॉर्टेंट। मतलब अंदर से हमें पता लग जाता है पहले 2 घंटे के बाद कि हमारा एग्जाम होने वाला है या नहीं होने वाला। बिकॉज अगर हमने पहले 2 घंटे एग्जाम के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, या फिर हमें टाइम नहीं मिला उसके बारे में सोचने के लिए, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट वेरी गुड। तो जब भी आप कल का मॉक अटेंड कर रहे हो या फिर कोई भी मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले 2 घंटे अपना इतना फोकस हो कि आपके पास सर उठाने का या किसी भी चीज का टाइम ही ना हो। आप स्टार्ट करो। अगर आप देखो, ये मैं हमेशा से बोलता हूँ, ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने बचपन से कैसे स्टार्ट करा। अगर आपने बचपन से लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट कर रखा है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा क्राइटेरिया क्या होता था, मैं हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ढूंढता था। बिकॉज हम एक्चुअल एग्जाम में 100 मार्क्स में से समवेयर अराउंड आईएफओ की पासिंग 60-65 होती है। तो उसमें से अगर हम पहले ही एक लॉन्ग क्वेश्चन उठा ले, से 15-20 मार्क्स का, जो हमारा स्ट्रॉन्गली होगा। फॉर एग्जाम्पल CM1 के अंदर वो हो सकता है हमारा लो शेड्यूल का क्वेश्चन। फिर आपका CS1 का अंदर हो सकता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन। सिमिलरली हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक टॉपिक होता है, और उसमें से अगर हमें क्वेश्चन दिख गया तो उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज जब हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे ना 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन को, तो हमें इतना पता होता है कि यार 60-65 लाने हैं, उसमें से हमारे 15-20 मार्क्स शायद सिक्योर हो गए। और फिर रिमेनिंग हमारे पास मान लो 2.5 या फिर 2.25 घंटे के लिए हमें 45-50 मार्क्स की और मेहनत करनी है। सो दिस इज वन ऑफ द वे। अब एक और क्वेश्चन क्या आ रहा है सर, अगर हमारा पूरा क्वेश्चन सही है मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप एग्जाम में बैठ के ये कैसे जज कर सकते हो कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। तो हम तो अपनी तरफ से जो करके आएंगे तो परफेक्ट ही करके आएंगे। और जब हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा तब तक भी नहीं हमें पता होगा कि हमने उस टाइम पे जो लिखा था। मतलब अगर आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प है, फिर आप आके घर में लिख रहे हो कि इसका यही आंसर आया था, देन इट्स डिफरेंट। बट इन सब चीजों के बारे में आपको फोकस ही नहीं करना। आपको फोकस ये करना है कि चाहे एग्जाम में कुछ भी आ जाए, यू 100% श्योर ऑफ दैट। एंड दैट्स वाई अभी जो हमारे पास 20 डेज बचे, आई थिंक सिर्फ CM1 के अंदर हमारे पास 15 से 18 डेज है। भाई ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मिनिमम 20 डेज तो है। इनको बेस्ट यूज करो अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए। जैसे हमने यूनिट्स ब्रेक करी हुई है, एक एक यूनिट उठाओ, उसको आप रिवाइज करो। जैसे जिन सब्जेक्ट्स के अंदर ए और बी पार्ट है, तो आप ऐसे कर सकते हो, एक यूनिट का आपने ए पार्ट उठा लिया, दूसरी यूनिट का आपने बी पार्ट उठा लिया। इससे क्या होगा, आप एट ए टाइम 2 यूनिट्स बार बार रिवाइज कर रहे होगे। और इस तरीके से अपना आगे प्रोसीड कर सकते हो। कल के जो मॉक टेस्ट होंगे, जिन सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट कल और परसों शेड्यूल्ड है, उनमें आपको पता लगेगा हमारे क्या वीक एरियाज है, उन पर फोकस करें। और जो रिमेनिंग टाइम बचे ना, उस पर ये फोकस मत करो कि हम हर एक चैप्टर के सबसे हार्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये मैं अपनी क्लासेस में बहुत बार बोला है, जो लास्ट का टाइम होता है ना, वो आपके लिए सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस करने के लिए नहीं होता। बिकॉज एग्जाम में 50 60 70 मार्क्स का पेपर इजी ही आने वाला है, इजी टू एवरेज आने वाला है, और आपके वही पास फेल डिसाइड करते हैं। तो उसमें अगर हम स्पीड बना लें और उसमें अगर हम एक्सेल कर लें, उस 70 में से अगर हम 55 60 ले लें, तो बाकी के हार्ड जो वाले 30 35 वाले हैं, उसमें हम इजीली 5 7 10 तो स्कोर कर ही सकते हैं। और उसके अंदर स्पीड बनाओ कि हमारे पास हर एक मार्क्स के लिए 2 मिनट्स है। वो 70 मार्क्स अगर हमारे पास 140 मिनट्स अलॉटेड है, उस 140 मिनट्स की जगह उसको अगर हम 2 घंटे में कर लें, तो हार्ड 30 मार्क्स से हमारे पास ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट्स होंगे, 80 मिनट्स होंगे, और उसमें हम इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। तो अपना फोकस इस तरीके से रखो कि 70-80% ऑफ योर टाइम इज गोइंग टुवर्ड्स द बेसिक क्वेश्चंस। आई एम नॉट सेइंग कि आप बुक बुक इजी क्वेश्चंस बनाओ, लेकिन जब आप एग्जाम पेपर उठा रहे हो, आप ये मत सोचो यार कि जैसे CM1 का फॉर एग्जाम्पल हमने सिर्फ पूरे फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन से भर के आ जाएगा। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल की डेरिवेशन आई तो 5 मार्क्स 7 मार्क्स 10 मार्क्स, उसकी एक लिमिट है। ऐसी हर चैप्टर का जो डिफिकल्ट चैप्टर है, हर सब्जेक्ट का जो डिफिकल्ट चैप्टर, उसमें से पूरा पेपर नहीं जाना। हमें पढ़ाई करते करते उसमें से पूरा आएगा। बट हैविंग सेड दैट, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बिकॉज आपको नहीं पता जो आप चैप्टर छोड़ के जा रहे हो उसमें से 25 30 नंबर का आ गया, तो आपके लिए
ट्रिकी हो जाएगी सिचुएशन, हमें सब कुछ करके जाना है। बट हाँ, जो हमें लग रहा है बहुत ही हार्ड है, ऐसा नहीं कि हमें पूरा टाइम से उस पर कंसंट्रेट करना है। एंड नाउ वी विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। We will be allowed to use the formula book online even though we are sitting. Yes, yes, definitely you will be allowed, Amina. Vanshika is saying after all chapters revision, only past papers practice is sufficient. Please tell what should be our schedule for next 15 days. So पहले कल का मॉक देते हैं वंशिका, आई थिंक यू आर फ्रॉम CM1। पहले कल का मॉक दो और उसके बाद देखो आपके कौन से वीक एरियाज है, उस यूनिट से स्टार्ट करो। अब आप फॉरवर्ड अप्रोच मत करो, आप बैकवर्ड अप्रोच करो। आप अपने पास पेपर्स उठाओ, पास पेपर्स बनाने की कोशिश करो, और पास्ट पेपर्स बनाते रहो। जिस क्वेश्चन में आपको ट्रिकीनेस आ रही है, आप उस चैप्टर पे जाओ और उसको वो वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, इंस्टेड ऑफ पिकिंग होल चैप्टर अगेन। हमारे जो CM1 के अंदर रिवीजन सीरीज भी है, आप उस रिवीजन सीरीज के अगर आप एक बार वीडियोस को गो थ्रू करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस चैप्टर के अंदर क्या है, किस चैप्टर के अंदर क्या है। जिस चैप्टर के अंदर मैं जो टॉपिक का नाम ले रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम लेते ही अगर आपको क्लिक कर रहा है, दैट मीन्स वो चैप्टर आपको कवर है। लेकिन जिस टॉपिक का नाम लेके आपको लग रहा है नहीं यार इसको मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें आप उस चैप्टर को पूरा गो थ्रू करके दोबारा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। सो यूज बैकवर्ड अप्रोच इंस्टेड ऑफ सेम कि आप फर्स्ट चैप्टर दोबारा उठा के पूरा पूरा पढ़ रहे हो, उसका सेंस नहीं है। तो पास पेपर्स के थ्रू आप ये चीज कर सकते हो कि पास पेपर्स के थ्रू उठा के जो वीक सेक्शन है उसको रिवाइज करते जा रहे हो, या फिर आप अपने रिवीजन लेक्चर्स को उठा के उससे भी आप ये वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। स्टूडेंट्स कीप ऑन पुटिंग योर क्वेश्चंस। आई थिंक सिल्की योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, यू आर म्यूटेड। Yeah, so Simran mentioned that we have to download some sort of data set. तो वो कौन सा data set होगा? So basically, as you approach your CS1B exam, you will be provided with a data set which will be used in CS1B exam. तो you can just make sure that you have downloaded the data set. तो एग्जाम के पास वो आ जाएगा आपके पास, you will be able to download it. Again, the most tricky question from Vanshika, sir, which are the most boring chapters for Excel and CM1B? Every chapter is very important, Vanshika, और इस चीज को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में। अगर मैंने आपको मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर बता दिया तो आप उसी चैप्टर के पीछे पड़ जाओगे। मतलब वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं सही, आपको पूरा कोर्स करना है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं तो कह रहा हूँ जो आज तक नहीं पूछा गया हो सकता है वो भी पूछा चला जाए। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से वो आपसे एमसीक्यू बनाना पूछ ले एक्सेल में, जो आज तक नहीं आया 5-7 मार्क्स के लिए। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट। हाँ, बहुत सारे चैप्टर्स से जो पूछे गए हैं पास पेपर्स में, तो ये मैं बता चुका हूँ। यूनिट लिंक से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लोन्स के क्लोज से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रोजेक्ट के क्लोज से पूछा जाता है। तो दीज आर द हॉट चैप्टर्स, बट डजंट मीन कि इसी में से ही पूछा जाएगा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम। So guys, more questions. We are here for guidance. So if you have more questions with respect to planning of 2026 exams, please put it in the chat section. Otherwise, we will assume you guys have no doubts and you're good to start with tomorrow's mocks. So already sir has given a lot of details with respect to how you need to plan for upcoming 15 days. So basically that's not just applicable for one single subject, that's applicable for all the subjects. So you just have to understand that how you have to fit in your respective subject. And for थ्योरी सब्जेक्ट्स योर नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आप नोट्स को गो थ्रू करो, और वही जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, नोट्स को गो थ्रू करते वक्त आपको लगे कि ये वाला टॉपिक मैं नोट से नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो आप उस चैप्टर को दोबारा गो थ्रू करके उसको दोबारा रीड कर सकते हो। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए नोट आर रियली इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। So guys, if we feel, let's just, then if there are no doubts, then we can wrap up for the day. Please, if you have any doubts, raise it fast. एंड यू गाइस आस्क टू मच क्वेश्चंस ऑन पर्सनल व्हाट्सएप, तो सबके साथ पूछ लोगे तो सबका भला हो जाएगा। डोंट हेजिटेट स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनीथिंग क्विकली पुट दैट इन द चैट सेक्शन।
So seems to be sorted then. We can call it a wrap then, Puneet. ठीक है. I hope that all your doubts with respect to planning or with respect to certain guidelines are clear. So the only focus should be basically on like on your respective exam and how you have to make sure that you are excelling in upcoming attempt. Okay. Then all the best for your upcoming mocks and all the best for the main exams. We want to see all your names with very good marks. We want everyone should score 80 plus in upcoming exam. And I think there are a few last minute questions. Sir, I'm currently practicing past year questions. I will complete them by this month. After that, how should I practice until 20th अप्रैल? अगेन सेम स्ट्रेटजी भागो. जो पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस करते वक्त आपको प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सॉल्यूशंस डायरेक्टली, आप उस प्रॉब्लम के लिए डायरेक्टली अपने चैप्टर पे जंप करो, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करो और फिर उसको बनाओ और फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से मैच करो. डायरेक्टली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पे मत जंप करो. जो आपकी प्रीवियस प्रैक्टिस थी और अब जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसमें यही डिफरेंस आना चाहिए कि अगर आप किसी टॉपिक पे स्टक हो रहे हो तो उसके लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मूव करने की जगह अपने बुक पे मूव करो और उस टॉपिक को दोबारा से revise करो, either from the book or from our videos. Okay, Thomas, then all the best. I hope everyone should give their mocks. Thank you. Okay, all the best, everyone. Thank you.